Partnership firm features, merits and demerits, and limited liability company. And so what today we are going to complete the limited liability corporation. We are going to write something on this, and after that we'll complete the corporation and how what is basically what kind of procedure are utilized for SSI registration. यानी small scale industries को register हम कैसे करते हैं? We are going to discuss about these 2-3 topics. Okay. So first of all, before starting this, what is partnership firm? What are the various features of partnership? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. Batch 2, roll number 27. Tell me. Ma'am, features of partnership firm is it is 2 or more person, maximum 10% in banking and 20 in others. More person, maximum 10% in banking and 20 in others. Contractual relationship, that is written and oral agreement. Profit sharing ratio, mutual agency among partners, no separate legal entity of the firm, utmost good faith, unlimited liability, restriction of transfer of interest, existence of lawful business, larger financial resources. These are, ma'am, features of partnership firm. What is the meaning of partnership? Ma'am, the relationship between between the persons who have agreed the profit sharing ratio of a business carried by all or anyone, according to Partnership Act 1932. What are the advantages of partnership firm? What are the various advantages of partnership? What are the various advantages of partnership? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे advantages partnership का? Who is going to tell me about it? Raise your hand. पार्टनरशिप के एडवांटेज बताइए, कौन बताएगा? Name secrecy, low supervision, flexibility of operation, and फिर हो गया direct motivation और liability divide हो जाएगा मैम पार्टनर्स में. हाँ, liability is divided. हाँ, ठीक है. Next. Risk division. Yes. Yes, में risk divide हो जाएगा. Okay. ठीक है. Good. Who is going to tell me about the disadvantages of the partnership firm? Partnership. Who is going to tell me about the disadvantages? Raise your hand. Disadvantage. Risk of implied authority, public distrust, blocking of capital, uncertain life of continuity, unlimited liability, lack of harmony, and Okay. and non-transferability of interest. What is partnership deed? Raise your hand. What is the meaning of partnership deed? And what are various things which is written in the partnership deed? What is the content of partnership deed? Who is going to tell me about partnership deed? क्या होता है? Raise your hand. Partnership deed. Batch 2, roll number 30. Yes. Ma'am, partnership deed is the written agreement which contains name or address of the firm, amount of capital, which are going to be distributed among all, profit sharing ratio, rate of interest, nature of the firm business, name of the firm, amount of salary or commission, allocation of work, goodwill of the firm, admission or retirement process, solution by dispute. Anything else, Sonam, you want to add on with him? Roll number 22. Okay, Roshan. You want to tell something? Tell me. बताइए, Roshan. Name of the business, nature of the business, principal, official address,
फिर nature of the address of partners, amount of partners, amount which can be withdrawal by each partners, profit sharing ratio, rate of interest for withdraw if withdraw any partner of them. फिर एक्स्ट्रा भी था कुछ मैम, कमीशंस, अमाउंट ऑफ सैलरी इफ एनी, एलोकेशन ऑफ वर्क, मोड ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रोथ, रिटायरमेंट प्रोसीजर, ये सब था। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब तो कंप्लीट हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू राइट अबाउट समथिंग अबाउट LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो earlier we discussed something about it. Who is going to tell me about it? Yes, Anupriya. Ma'am, there is some disturbance with your voice, I guess. के बारे में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। What I explained in the last class, tell me. मैम LLC मैम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है मैम, एक पार्ट और एक कंपनी में। पार्टनरशिप में टैक्स एडवांटेज हम लोग को मिल सकता है और कंपनी लायबिलिटी हो सकता है। Very good, Sonam. Roll number 30, you too. That is truth. That is LLC बेसिकली क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हम कंपनी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग। ठीक है, दैट इज वन इज द पार्टनरशिप भी होता है, और साथ साथ में आपका दूसरा क्या होता है? कंपनी। अब दोनों के कुछ कुछ पॉलिसीज जो है वो यूटिलाइज होते हैं आपके LLC में। चूंकि इसका नाम ही लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसका मतलब जो है लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिट होगा, यानी आपके पर्सनल एसेट जो है वो रिस्क स्टेज में नहीं होंगे, यानी रिस्क में नहीं होंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज पार्टनरशिप। लाइक पार्टनरशिप में आपका जो बेसिकली पार्टनर्स होते हैं वो और उनकी जो फर्म है, वो दोनों जो है वो एक ही पर्सन है, सिंगल है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है उनके फर्म का। इसीलिए यहाँ जो टैक्स जाता है वो एक ही जाता है, टैक्स सिंगल टैक्स जाता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का हमें टैक्स का एडवांटेज मिल जाएगा और कंपनी का एडवांटेज मिल जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, ये जो कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो ज्यादातर यूएस में बेसिकली अभी क्या है, यूएस में चलता है ये ज्यादातर। इंडिया में अभी ऐसा कुछ ज्यादा इस तरीके की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो आपके, मैं बुक से कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ लिया है बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी है, यहाँ पर जो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके basically that is the mixture, इसमें लिखते जाइए। The limited liability company is a combination of partnership, and limited liability company is a combination of partnership and company. Like partnership, there is no separate legal entity. Like partnership, there is no legal separate entity. ठीक है, लाइक पार्टनरशिप की तरह देयर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। सो वी जस्ट नीड टू पे अ सिंगल टैक्स, और वी कैन टेक टैक्स एडवांटेजेस, ठीक है, हम टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। And like company, the liability is limited. So limited liability company is a combination of both partnership and company. ठीक है, like partnership, there is no separate legal entity. पार्टनरशिप की तरह कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. So we just need to pay a single tax, or we can take the advantages of tax, right? And like company, there is a limited liability, और liability क्या है? Limited है किसमें? आपके कंपनी में. तो ये बेसिकली आपका लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हुआ. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में और भी चीजें लिखिए. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में लिखिए, a limited liability company is a business structure. A limited liability company is a business structure for private companies in US.
इन यूएस, मतलब इंडिया में उतना नहीं है बट यूएस में ऐसा है, ठीक है। इन यूएस a limited liability company is a business structure for private companies in US, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का? आई गेस मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। क्लियर है सबको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मीनिंग? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्या क्या एडवांटेजेस हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के? सो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके एडवांटेजेस तो इसके मीनिंग से ही कहीं ना कहीं पता लग गए कि टैक्स बेनिफिट्स होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, रिस्क नहीं होगा। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो आप एडवांटेजेस में लिख लीजिए, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो है वो बेसिकली इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है आपका, आप अपने बिजनेस में जो चेंजेस वगैरह लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप पार्टनरशिप की तरह। टैक्स रिजाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स पेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। डबल टैक्सेशन का कोई सीन नहीं है, सो इट इज वी कैन से दैट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन में वही सेम चीज आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा आई थिंक एडवांटेजेस हैं, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक भी है। सो इसमें 2 पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन इज इट्स एडवांटेज, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स हैं वो लिख लेते हैं। ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सो सबसे पहले डिसएडवांटेज है एलएलसीज के, कि यहाँ पर बेसिकली अवॉइड करने के लिए, आपको डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस कुछ पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में हो सकता है कुछ सेल्फ टैक्सेस भरने पड़ सकते हैं। साथ साथ में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरह इसका रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज वेल, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है, आपको इसको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि आप वहां पर नहीं भी करवा रहे रजिस्ट्रेशन तो चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। थर्ड है कि फीस और टैक्सेस वगैरह वही जो एक आपको होता है सेल्फ रेगुलेशन, कुछ टैक्सेस वगैरह देना पड़े। और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है उसको सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, कंप्लायंसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक जैसे आपके जो पार्टनरशिप था उसमें सच जरूरी नहीं था कि गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशंस जो हैं वो लागू थे पार्टनरशिप पे भी, ऐसा नहीं था। बट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को सारे लीगल कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपके इसके डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है? स्ट्रक्चर डिफिकल्ट या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर मे बी some self regulations, fees, taxes we just need to pay for limited liability company, self tax वगैरह देना पड़ सकता है। थर्ड इज लाइक कि एवरी गवर्नमेंट रेगुलेशन यू हैव टू फुलफिल, सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस को आपको पूरा फॉलो करना है, फुलफिल करना है। और रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जरूरी है। क्लियर हो गया? तो जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, मान लीजिए कि कंपैरेटिवली टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में वो कॉम्प्लेक्स और एक जटिल बोल सकते हैं एक सिचुएशन होगा, लॉन्ग टाइम, एफर्ट, टाइम, हर चीज इसमें ज्यादा लगेगा। बट बेनिफिट्स भी है कि यहाँ पर आप टैक्स का कुछ बेनिफिट हो सकता है, और साथ साथ में आपको बेनिफिट किस चीज का है? आपके रिस्क का, मतलब आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं जाएंगे इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन और इन द केस ऑफ बेसिकली बिजनेस के शटडाउन पे। नेक्स्ट लिखिए कॉर्पोरेशंस। यस बलराम? मैम बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज, in this case you have to disclose the things, whatever you disclose to the company and corporation, as same you have to audit your financial account and you have to disclose it in the front of public as well, ठीक है। सो पार्टनरशिप का आपको फायदा, एडवांटेज टैक्स में ही बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा पार्टनरशिप की तरह, बाकी इसकी सारी चीजें लगभग कंपनी की ही तरह होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशंस? तो कॉर्पोरेशन जो हम कह सकते हैं कंपनी हो सकता है,
कंपनी के नाम पे केस किया जा सकता है। शूड मतलब कि जहां पर हम किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। लाइबल होता है बेसिकली डेब्ट्स के लिए, और कंपनी खुद ही टैक्स और टैक्स होता है अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, वो कंपनी के बिहाफ में टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन इज सेम एज लाइक कंपनी। कंपनी क्या है? दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल बेसिकली पर्सन है, ठीक है। इसमें जो आपका वहां के जो पर्सन, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होंगे, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर कंपनी, और उनका कोई भी बेसिकली वो उसके बिहाफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन? मेंबर्स कंपनी के बिहाफ में दे विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है कॉर्पोरेट वील, VEIL, कॉर्पोरेट वील, ठीक है। इसको जरा पढ़ना आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब कुछ केसेस हुए थे तब बीच में जो पर्दा होता है बेसिकली किसके बीच में? ओनर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, इसको कब हम हटाते हैं? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हम कंपनी को और उसके पर्सन को एक मानते हैं, ऐसा होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। कॉर्पोरेट पर्दा जो है उसको हटाना, ठीक है, उसको हम हटाएंगे और उसके बाद बेसिकली हम पर्सन को पकड़ेंगे। जैसे सत्यम के केस में हुआ था, सत्यम के केस में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसके डिसोल्यूशन के लिए, खैर उसको टेक महिंद्रा ने ले लिया, मतलब उसको एक्वायर कर लिया, बट स्टिल उस केस में क्या था कि डायरेक्टर्स जो थे रिस्पॉन्सिबल पाए गए। तो कुछ केसेस होते हैं, बट एक्चुअल अगर हम नॉर्मल टर्म में देखें तो जो कॉर्पोरेशन और कंपनी होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। किससे? बेसिकली पर्सन से, जो वहां पर ओनर्स, डायरेक्टर्स है, उनका एक अलग पहचान है, एंटिटी अलग है। यहां तक कि अगर आप नोटिस करोगे कि कभी भी उनका जो बेसिकली जो टैक्स वगैरह भी जो पेमेंट होता है वो कंपनी के नाम से टैक्स पे होता है, ना कि किसी पर्सन के नाम से। जैसे मान लीजिए कोई XYZ अगर कंपनी में, कोई मान लीजिए XYZ कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ है, वो काम कर रहा है किसी ABC प्राइवेट लिमिटेड में, कंपनी में काम कर रहा है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये ABC कंपनी के लिए कोई डील बनेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में नाम जो जाएगा वो ABC लिमिटेड का जाएगा, ना कि ये XYZ जो इस कंपनी के बिहाफ में डील कर रहा है उसका नाम जाएगा, नहीं, उसके नाम पे ये नहीं होगा। और इसीलिए इनका एक कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों ने स्टैंप देखा होगा, कंपनी का स्टैंप लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तभी वो ऑथराइज्ड होता है डॉक्यूमेंट। तो जो कॉर्पोरेशन होता है वो एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, ठीक है, जिसको टैक्स भी पे करना है, और कंपनी के खिलाफ कोई बेसिकली केस भी दर्ज कराया जा सकता है, शूट भी होगा, वो कंपनी के नाम पे, कोई पर्सन नहीं, कंपनी को सू किया जाएगा, ठीक है। साथ साथ में उसको सारे डेब्ट्स के लिए भी कंपनी लाइबल होगा। लोन, डेब्ट्स, लॉसेस के लिए कौन लाइबल होगा? कंपनी लाइबल होगा, ना कि उसके मेंबर्स लाइबल होंगे, ठीक है। और इन द केस अगर कोई पर्सन कोई लोन लेता है, कोई कंपनी में अगर कोई पर्सन लोन लेता है, उसका डेब्ट है, तो कंपनी भी उसके लिए लाइबल नहीं है कि वो उसकी रिपेमेंट करेगी। कंपनी जो है वो अपने खुद के डेब्ट और टैक्सेस जो उसके नाम पे लिए गए हैं उसके लिए लाइबल है, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट लॉस वगैरह जो होंगे वो कंपनी के होंगे, ना कि उसके ओनर और उसके मेंबर के होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर शेयर होल्डर्स वगैरह भी होंगे। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंपनी के IPO वगैरह को भी हम जारी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पर पूरा फुल रोल होगा, किसमें? कंपनी में, ठीक है। सो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या बेसिकली ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेजेस हैं, उसको भी हम अभी कवर करेंगे। को समझ आ गया होगा कॉर्पोरेशन क्या है? दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम सू कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, टैक्स उसके बिहाफ में पे करेंगे, दैट इज कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म एंड फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप इन एवरी एस्पेक्ट्स. If we will talk about the registration, if we'll talk about the taxes, if we'll talk about the entity, if we'll talk about the liabilities, that is totally different from the sole proprietorship and partnership. ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस उसमें भी है, लाइक उसमें पार्टनरशिप और उसका कॉर्पोरेशन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। बट कॉर्पोरेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन? इसको हम प्रॉपरली पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि आपके बुक में ज्यादा इसके बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन में लिखिए, अ कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय, अ कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय individuals
stockholders या shareholders. A corporation is a legal entity which is created by individuals, यानी जिसको individuals के द्वारा create किया जा सकता है या फिर shareholders के द्वारा create किया जा सकता है. ठीक है, so लिखिए, a corporation is a legal entity which is created by individuals or shareholders, with the purpose of operating for profit, यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट है, वैसे ही सेम आपके कॉर्पोरेशंस का भी मेन एम क्या है, बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना. एंड दैट कैन बी स्टार्टेड बाय इंडिविजुअल, मतलब हम लोग जैसे लोगों के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है, और साथ साथ में इसको स्टार्ट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. corporations are allowed to enter into contracts. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कौन होगा, कॉर्पोरेशन एंटर होगा, कोई इंडिविजुअल एंटर नहीं होगा, कोई पर्सन एंटर नहीं होगा. कंपनी जब बन गया, कॉर्पोरेशन जब बन गया, रजिस्टर हो गया, तो उसके बाद जो बेसिकली दोनों एंटिटी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पर्सन और वो. आगे लिखिए, corporations are allowed to enter into contracts. Corporations are allowed to enter into contracts. sue यानी कंपनी के बिहाफ में आप दूसरे पे भी केस कर सकते हो चाहो तो, और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है. यानी कि the corporations are allowed to enter into contract, comma, sue, and be sued, sue and be sued, comma, own assets, comma, own assets चलिए ठीक है, शुरू करते हैं. own assets, ठीक है. Corporations are allowed to enter into contracts, sue and sued, own and comma own assets होता है इनका. ठीक है, अपना ये borrow कर सकते हैं, and borrow money from the financial institutions, यानी कि ये क्या करेंगे, आपका बिल्कुल अलग इनका सिस्टम चलेगा. रजिस्टर्ड होंगे, लोन लेना होगा, कंपनी अपने नाम पे लोन लेगी, कंपनी के नाम पे लोन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में सू भी हो सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो बनेगा, आप किसी पे केस भी कर सकते हो, सब कुछ कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नाम पे होगा. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके कॉमन टाइप ऑफ कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं. पहले क्या क्या बेनिफिट्स है कि इसमें जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल होगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. सो बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी है इसमें, उनकी जो आपकी बेसिकली लायबिलिटी होगी, दैट विल बी लिमिटेड. ठीक है, लिमिटेड होगा. और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दे दिए हैं. खैर आपके बुक में ये मेंशन इसलिए किया गया एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, कॉर्पोरेट व्हील की बात आ रही थी, कॉर्पोरेट व्हील को हटाने की बात आ रही थी. तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज है कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जब ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कंपनी के बिहाफ में, बट दैट इज द एक्सेप्शनल केसेस, दैट इज नॉट इन द रेगुलर केसेस, राइट. सो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उसकी लायबिलिटी जो है दैट विल बी लिमिटेड. सेकेंड क्या है इसका बेनिफिट है, बेसिकली कॉर्पोरेशन जो है वो इजिली फंड को रेज कर सकता है. लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड जो था दैट इज क्वाइट लिमिटेड. हम कह सकते हैं वो लिमिटेड है. पार्टनरशिप में तो चलो फिर भी पार्टनर्स 3-4 होते हैं तो वो चलो फंड ले आते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही पर्सन है हर चीज के लिए, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. अब यहाँ पर आप इजिली शेयर होल्डर्स के थ्रू फंड को रेज कर सकते हो. तो यहाँ पर अनलिमिटेड या फिर बोल सकते हैं कि ज्यादा स्कोप किस चीज का है, फाइनेंशियल रिसोर्स का. यानी यू आर इजिली एबल टू गेट द फाइनेंशियल रिसोर्स
फाइनेंशियल रिसोर्स, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पूरे फुल ऑप्शन रहेंगे। थर्ड जो है, थर्ड इसमें क्या है कि यहाँ पर बेसिकली आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, बट ये है कि आपको बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दो टाइप की कॉर्पोरेशन है, जैसे एस कॉर्पोरेशन है, तो वो उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 टाइप के कॉर्पोरेशन होते हैं, तो कुछ एक एस कॉर्पोरेशन है जिसमें हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। खैर इसमें मत लिखिए इसको, एस कॉर्पोरेशन वगैरह की जरूरत नहीं इतना डीपली पढ़ने का। तो बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पर रिस्क से रिलेटेड, फाइनेंशियल एबिलिटी से रिलेटेड वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड यू विल गेट द बेनिफिट। ड्रॉबैक्स इसके कुछ ज्यादा हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला कि यू हैव टू बेसिकली फुलफिल ऑल द लीगल कंप्लायंसेस, जो भी लीगल कंप्लायंसेस है फुलफिल करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है आपका कि यहाँ पर आपका लॉन्ग प्रोसीजर है, लाइक पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ स्मॉल प्रोसीजर नहीं है, लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। थर्ड ये है कि आपका, अच्छा उसमें बेनिफिट लिख सकते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका भी एक बेनिफिट है, ये बेनिफिट है कॉर्पोरेशन का, बेनिफिट लिख लेना सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है इसका? आपको सिक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपको सारे फाइनेंशियल ऑडिट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिश करवाना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में इसके क्या क्या आ जाएंगे? लाइक एडवांटेजेस में इसमें आ जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए पर्सन का और उसकी कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है, डेप्ट दोनों का अलग अलग होगा। सेकेंड चीज होगा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यू इजिली रेज द फंड थ्रू द IPO एंड थ्रू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स के थ्रू आप इजिली रेज कर सकते हो फंड। जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड बेसिकली इसका एडवांटेज है इसका थर्ड, कि यहाँ पर आपको बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला सीन है। इसके कुछ डिमेरिट्स है, या फिर कह सकते हैं कि ये लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम टेकन इसका प्रोसीजर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है, हाँ ये भी बिल्कुल वेरी गुड। परसेप्चुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि कंपनी जो है बेसिकली उसमें लोग रहे ना रहे, कंपनी अपना चलती जाएगी, यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मरेगी तो है नहीं कंपनी, पर्सन कैन बी डाई, मेंबर्स कैन बी डाई, बट द कंपनी विल नेवर डाई, राइट। तो यहाँ पर उसको डाई बेसिकली तब होगा जब उसको 100% आप डिसॉल्व करते हो, खत्म करते हो, ठीक है। एक वो भी प्रोसीजर के थ्रू, एक प्रॉपर। तो परपेचुअल सक्सेशन वाला भी सीन है बेसिकली आपका, ये इसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट में आएगा परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। और इसके जो डीमेरिट्स में बस ये सारे पॉइंट्स हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर हो गए? लिखवा दो मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गया। लायबिलिटी, फिर रिसोर्सेज, so many resources for so many financial resources, we can easily raise the fund through the shareholders, perpetual succession, separate legal entity. So these are the advantages of corporation. What are the various disadvantages? तो first thing जो इसका disadvantages है corporation का आपका, कि जो corporation है आपका वो इसमें मैंने disadvantages में कौन-कौन से points बताए थे? लीगल कंप्लायंसेस है, एफर्ट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लॉन्ग है, आपको सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, सिक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। और इन द केस कभी कुछ एक्सेप्शनल केस होता है तो ओनर एंड मेंबर्स विल बी लायबल फॉर देम ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एज वेल। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशंस। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, तो ये जितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है that will divided into two parts। जो sole proprietors है वो भी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप है, they can also do that, ठीक है। कॉर्पोरेशंस और कंपनी तो वो ऑब्वियसली पब्लिक है, प्राइवेट ही होगी। सो यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सबने लिख लिए, कॉर्पोरेशंस के सबने लिख लिया है। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की तरफ मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। एज सच मुझे नहीं लगता कभी भी कोई किट कंपनी जो है बेसिकली, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इसको देखें तो बेसिकली पार्ट जो आपकी प्राइवेट कंपनी है दैट इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में मेंशन है, बट इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है सेक्शंस वगैरह, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल लिख दें कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन से होती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको मेंशन किया गया पहले 1956
1946, अब ये 2013 के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, जो पर्पस है प्राइवेट कंपनी का वो क्या है कि बिजनेस जो है वो बेसिकली प्राइवेट कंपनी व्हेन बिजनेस इज नॉट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नहीं होगा, ओनर मैनेजमेंट जो है वो चाहे तो मतलब अगर वो बहुत बड़ा है तो दे कैन यूज दिस प्राइवेट कंपनी वाला, अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस है तो वही पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनीज होती है बेसिकली जो लार्ज कॉर्पोरेशंस वगैरह बेसिकली हम उसमें रजिस्टर कराते हैं, प्राइवेट करवाते हैं और पीछे उसकी प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। कंपनी अगर छोटी होती है, छोटी मोटी बेसिकली अगर आपको बिजनेस शुरू करनी है कंपनी, तो दैट कैन बी पार्टनरशिप और दैट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या है, देखिए आपके बुक में फीचर प्राइवेट कंपनीज के कुछ फीचर्स क्या क्या है लिखिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होंगे प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर कराने के लिए, प्राइवेट कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम जो नंबर होंगे दैट विल बी 2, मतलब 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी में ये 200। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन दैट इज 200 पीपल। मैक्सिमम 200 लोग होंगे और मिनिमम कितने लोग होंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट है जो मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी कितना कैपिटल होना चाहिए कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए, तो वो होना चाहिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। ठीक है, सो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगा प्राइवेट कंपनी के लिए दैट इज 1 लाख रुपीस, 1 लाख। ठीक है, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है अभी तक प्राइवेट के लिए, बट मिनिमम जो होना चाहिए पेड अप कैपिटल दैट विल बी कितना होना चाहिए, दैट विल बी 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपए होना चाहिए। क्लियर है, 1 लाख रुपए होना चाहिए, मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो बेसिकली क्या होता है, जहां पर कंपनी जो है उसका अपना एओए होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसका खुद का। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रहेगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और वो प्रिवेंट करेगा कि पब्लिक को एट लार्ज हम अलाउ करें सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स के लिए। सो यहाँ पर बहुत सारी, ऐसे तो बहुत डीप में है, मिनिमम लिख लिया सबने। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी आर 2 एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 200। मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 1 लाख रुपीस एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। कोई भी ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगा, और जो बेसिकली किसके द्वारा मेंशन किया गया, कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो प्राइवेट कंपनीज जो है उनका जो शेयर्स होगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड ऐसे ट्रांसफर बिल्कुल ही अलाउड नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी भी हाल में कोई भी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करेगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विल नेवर अलाउ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर्स होने चाहिए, द डायरेक्टर्स जो होंगे, मिनिमम डायरेक्टर्स विल बी 2। ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर्स जो होंगे वो 2 होने चाहिए। यस अनुग्रह। मैम रिलायंस जो है वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि वो भी शेयर इशू करती है। टोटली डिपेंड। देखो अगर लिमिटेड लगा रखा है उन्होंने, अगर पब्लिक लिमिटेड करवा रखा है उन्होंने, तब तो फिर जो भी कंपनी अपने बैक में लिमिटेड लगाएगी वो याद रखिएगा वो पब्लिक लिमिटेड है, यानी कि पब्लिक से पैसा लेने उनको अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जहां प्राइवेट लिमिटेड लग गया वो कोई भी अपना शेयर इशू नहीं करेगी, प्रोहिबिटेड होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है किस चीज पे, अपने शेयर्स इशू करने पे। ठीक है, पर कुछ पॉलिसीज हैं, अभी तो है बहुत डीप में कंपनी लॉ, सो वी कैन नॉट एबल टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट इतना याद रखिएगा जो प्राइवेट कंपनी होती है वो बेसिकली अपने बैक साइड प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में उन पे रिस्ट्रिक्शंस होगा, मिनिमम जो पर्सन होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जो प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में लोग होंगे वो 200 होंगे, मिनिमम डायरेक्टर इसमें 2 होने चाहिए। ठीक है, सो और मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगा वो 1 लाख रुपए होना चाहिए। तो आपका जो कंपनी है या फिर जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप प्राइवेट में कन्वर्ट करा के उसको रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, सेकेंड आता है, अब हम फीचर्स तो हम लोगों ने कर लिया। पब्लिक कंपनी क्या है, व्हाट
2013 अब एक ओपीसी भी आ गया है, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में आप लोगों को इतना डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन एक पर्सन भी कंपनी को शुरू कर सकता है, ओपीसी। और कंपनी को कभी भी शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कहाँ से लेना पड़ता है, कहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा, एमसीए के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। कभी उसका साइट ओपन करके देखिएगा, यू विल गेट सो मेनी फॉर्म्स भरना होता है। पहले रन के फॉर्म को रन करवाइए, रन के फॉर्म को फिल कीजिए विद नेम, उसके बाद वो जब उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बाद आगे के बेसिकली रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्रोसीजर कंटिन्यू होते हैं। चलिए उतना आगे हम बढ़ते हैं। फिर पब्लिक के क्या क्या फीचर्स हैं लिखिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे पब्लिक में, दैट विल बी 2 एंड यहाँ पर जो है इट डज नॉट रिक्वायर कोई प्रोमोटर की तरह इसको, जैसे प्राइवेट कंपनी में प्रोमोटर के थ्रू प्राइवेट कंपनीज को स्टैब्लिश किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि प्रोमोटर के थ्रू इसको स्टार्ट किया जाए प्राइवेट कंपनी को, ये बेसिकली आपके पब्लिक कंपनी को। और एक और चीज इसमें होगा, मिनिमम नंबर 2 है, रिस्ट्रिक्टेड है 2, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम में पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, बेसिकली पब्लिक कंपनी में जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो होगा उसमें एक मिनट गलत लिख दिया है पीडीएफ में, ठीक है। मैक्सिमम इसका 7 होता है, मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे दैट विल, मिनिमम होंगे 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं, क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मुझे इसको बताना ही पड़ेगा अच्छे से, पीडीएफ भी आजकल गलत रहते हैं। मिनिमम जो होगा पब्लिक का वो होगा 7, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये होगा आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में आप शेयर को इशू कर सकते हैं, शेयर कैन बी इशूड, ठीक है। और अभी जो मिनिमम इसके डायरेक्टर हो गए हैं वो हो गए 3, पहले 7 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, अब 3 हो गया 2013 के बाद। मिनिमम डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, लिमिट कोई नहीं है मैक्सिमम में, और इसका जो बेसिकली शेयर है दैट कैन बी इशूड पब्लिकली। क्लियर हो गया सबको? ये बस इसके कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको पब्लिक कंपनी के। और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो बता, देयर आर मोर सो मेनी अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी मेड इन 2013 कंपनीज एक्ट, दैट इज ऑन 2015, 15 में भी हुआ है, 17 में भी हुआ है, 19 में भी हुआ है, बहुत बार इसमें अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। लेकिन अब 1956 का नहीं चलता है कंपनीज एक्ट, अब आपका पूरा का पूरा जितने भी सेक्शंस है ना दैट इज ऑलरेडी चेंज, सारे सेक्शंस वगैरह चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दोनों कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आपका कंपनीज एक्ट 2013। नॉन प्रॉफिट जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको भी इसके द्वारा रन किया जाता है। जो फॉरेन कंपनीज है उनको भी कंपनीज एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ कंपनी जो है जितनी भी टाइप की कंपनी होंगी, और कुछ ऐसी कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कंपनीज जो आपके आएंगी वो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रेगुलेट होती है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी बुक है उसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ है, गलत है ये, इसको यहीं पर सुधार लीजिएगा। 200 लोग हैं, 200 अब चाहिए, और पेड अप कैपिटल इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन। आई गेस सारे के सारे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बुक में गिवन थे वो सारे हो चुके हैं। चलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन की अब हम बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ जो मैंने आज टॉपिक कंप्लीट करवाया है उसको मैं थोड़ा पूछ लेती हूँ, जो फ्रेंचाइजी क्या होता है। सी लाइक जैसे कि हमारे मैकडी है, डोमिनोज है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बहुत सारे ब्रांच आपको हर जगह पे दिखते हैं, मैकडी के, डोमिनोज के, ठीक है। फिर उसके बाद बाटा वगैरह के, ज्यादातर फूड चेन के आपको बहुत सारा ब्रांच दिखेंगे, सीडी दिखेंगे, स्टारबक्स दिखेंगे, बरिस्ता, ये जितने भी बेसिकली फूड चेन्स और ये जितने भी चेन है ये बेसिकली फ्रेंचाइजी के थ्रू इसको शुरू किया गया है।
फ्रेंचाइजी लिया जाता है? फ्रेंचाइजी क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट किसके बीच में बनता है? जो आपकी कंपनी है, मान लीजिए कि जो मैकडी कंपनी जो है, मैकडी कंपनी है, और आपको पता होगा मैकडी यूएस की कंपनी है। सो मैकडी जो कंपनी है वो अपना फ्रेंचाइजी क्या करती है, स्टार्ट कर देती है देना किसको? बेसिकली इंडिविजुअल्स। सबसे पहले जो मैकडी था दैट वाज स्टार्टेड इन 1990s इन दिल्ली। और इसमें बेसिकली क्या होता है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसमें कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देगी, एक अग्रीमेंट बनेगा। एक अग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा? यहाँ पर अग्रीमेंट बनेगा आपके जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है इंडिविजुअल यानी और एक जो फ्रेंचाइजर है जो फ्रेंचाइजी देगा उसके बीच में, यानी दो लोगों के बीच में बेसिकली क्या होता है, अग्रीमेंट बनेगा। उसके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जब हम रजिस्टर कराते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर कोई एसएसआई जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है? रजिस्ट्रेशन खैर मैंडेटरी नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। Registration is not mandatory for small scale industries, but still if you will register your industry, in that case what will happen, you will get some benefits, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब एसएसआई को एक बार सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो उसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? पहला बेनिफिट्स, आपके बैंक लोन में जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिडक्शन इन द बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन इंटरेस्ट, ठीक है। रिडक्शन इन बैंक लोन इंटरेस्ट, यानी कि जो बैंक लोन में जो इंटरेस्ट वगैरह जो आपने लिया है वो इंटरेस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा इन द केस इफ योर एसएसआई इज रजिस्टर्ड, ठीक है। इजी एक्सेस टू क्रेडिट, बिकॉज इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज के भी बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज और फाइनेंशियल जो भी आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्माइल प्रोजेक्ट, सिडबी, नाबार्ड, दीज इंडस्ट्रीज जो है, आईडीबीआई, ये क्या करती है? ये बेसिकली इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करती है। एक बार आप रजिस्टर्ड एसएसआई बन गए तब आपको इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के टेंडर्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। गवर्नमेंट के टेंडर्स पता है क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर्स पता है? कॉन्ट्रैक्ट और कुछ वर्क जो होता है वो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्राइवेट एंटिटीज को या बेसिकली कुछ इंडस्ट्रीज को, जैसे रोड बनाने का काम हो गया, ये सब के टेंडर को पास किया जाता है। हर एक अपने अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज और जो अलग अलग इंडिविजुअल की कंपनीज हैं वो टेंडर को फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, और वो कितने रुपीस में वो प्रोजेक्ट को रेडी कर देंगे उसका अमाउंट मेंशन करते हैं। और ये जो टेंडर्स होते हैं अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं, यानी कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि भाई एबीसीडी कंपनी ने इतना पैसा दिया है प्रोजेक्ट के लिए, एक्सवाईजेड ने इतना दिया है। फाइनली बाद में जाकर के क्या होता है, डिस्क्लोज होता है, जिसका सबसे कम अमाउंट में जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रेडी होते हैं, जो सबसे कम अमाउंट में प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उनको टेंडर दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपका एसएसआई एक बार रजिस्टर हो गया तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के टेंडर्स भी आपको मिल सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपको कॉन्सेशन और आपको कुछ कॉन्सेशंस मिलेंगे, कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ पेटेंट्स वगैरह एक्वायर करना चाहोगे तो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी दिलवाएगा, किसमें? जब आपका एसएसआई रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन पे, लाइसेंस पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाएगा इंडस्ट्रीज के लिए, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, साथ में कुछ बेसिकली सर्टिफिकेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। और साथ में आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी इंसेंटिव्स हो सकता है प्रोवाइड किए जाए, मतलब मिले आपको, ठीक है। सो ऑल द टॉपिक्स जो भी हम लोगों ने आज क्या क्या किया उसको मैं एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा। आज क्या क्या हम लोगों ने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। Limited liability corporation is the combination of partnership and company will get the benefit of tax as partnership and our liability is limited like company. तो ये होता है LLC, limited liability corporation। इसके बेनिफिट्स वही है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, रिस्क कम होगा,
कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसमें आपको जो भी ऑडिट वगैरह सबके रिपोर्ट्स आपको पब्लिश करवाने पड़ेंगे। आप कंपनी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होगा उसके मेंबर से। आप कंपनी को सू कर सकते हो, कंपनी खुद सू कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। सो स्यूड, सू एंड शूड, दोनों दैट कैन बी हैपन, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, कॉर्पोरेशंस में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? लाइक इसमें जो आपके फंड्स होंगे वो आप शेयर होल्डर्स के थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इजिली अवेल करवा सकते हो। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, सेकेंड आपके पास क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है, कभी इसकी डेथ नहीं होगी, कभी लाइक मेंबर्स। और एक चीज, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कभी भी कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मेंबर के बिहाफ में और मेंबर कंपनी के बिहाफ में, ठीक है। एंड थर्ड, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टाइम टेकन है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ये सॉरी कॉर्पोरेशंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनीज है जो दोनों कंपनी जो है वो किसके थ्रू चलती है? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, और साथ साथ मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होगा आपके शेयर को ट्रांसफर करने में। प्राइवेट का ये था आपका प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होगा? जिसमें मैक्सिमम मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल का भी, पेड अप कैपिटल का भी कोई इसमें लिमिट नहीं है। साथ साथ में आप इसमें इजीली क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, पैसे जो है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू एक्वायर कर सकते हो, रेज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, लाइक पब्लिक और प्राइवेट में, पब्लिक में पीछे बैक साइड ऑफ द कंपनी नेम लिमिटेड लगता है, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट है? अभी हमने रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स को नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स किया है। रजिस्ट्रेशन करवाने पे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि एसएसआई का रजिस्ट्रेशन टोटल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं करवाइएगा, लेकिन करवाने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो ये था जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, इसको हम प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे। और जितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने करवाए हैं सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी टॉपिक के नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ दैट। क्लियर हो गया सबको? समझ में सबको आ गया जो भी मैंने आज बताया, जो भी पॉइंट्स बताए? डायरेक्टर्स एक पॉइंट रह गया। डायरेक्टर्स जो होते हैं आपके पब्लिक में बेसिकली मैक्सिमम मतलब 7 होने चाहिए, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है डायरेक्टर्स, 3 पहले 7 थे। प्राइवेट में मिनिमम जो होता है 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी टुडे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा जो होता है, व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो भी आपकी कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस के लिए आप एओए को रजिस्टर करवाते हो। जब आप कंपनी शुरू करते हैं हम लोग, तो हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है अपना लागू करते हैं, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसमें आप अपने बिजनेस का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह, जैसे पार्टनरशिप डीड में कैसे पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ होता है, वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी चीजें होंगी। कंपनी का नाम होगा, कंपनी आप किस नेचर का, कहाँ, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपके वो कितने एम्प्लॉइज हैं आपके साथ, प्रोमोटर्स का नाम क्या है, मतलब कंपनी को किसने शुरू किया है, प्रोमोटर्स, उसके पर्सनल एड्रेसेस वगैरह। अगर आप एनआरआई हैं मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी आप मेंशन करोगे। किस तरीके से बिजनेस को रन करोगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं, ठीक है, एओए में। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक तरीके का आपका एविडेंस होता है आपकी कंपनी के लिए, एक तरीके से पॉलिसी बुक होता है। समझ में आया हर्ष? यस मैम। और मैम मेमोरेंडम ऑफ वो एक्सटर्नल करोगे, शेयर्स कितने दिनों पे, सब्सक्रिप्शन डेट क्या होगा। तो एक्सटर्नल जो उसके मेंबर्स होंगे आपके शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, उनके लिए जो पॉलिसीज वगैरह जो आप बनाओगे, दैट इज एमओए। AOA is something which can be totally made for your company और कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए। MOA is something which is made for the outsiders and जो आउटसाइड में जो एक्टिविटीज होगी उनके लिए, ठीक है। इन शॉर्ट